जय गुरु जी संगत जी। सच में गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे इसमें भी बताया गया कि हर चीज़ का शुक्राना, उठने का, बैठने का, आपके पास बुलाने का, अपने दर्शन देने का, हर चीज़ का शुक्राना, हर कहते हैं हर सांस का शुक्राना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो मैं अब रीड करती हूँ लाइट ऑफ डिविनिटी, द नेक्स्ट चैप्टर। ही टुक कमांड ऑफ आवर लाइव्स। I live in Jalvayu Towers, Sector 56, Gurgaon, and the following is a humble attempt on my part to share mine and my family's experiences under Guruji Sharan. During this period, we have watched our own life transform for the better just through a simple nod from Guruji. We have now come to realize that our beloved Guruji is Lord Shiva himself, and there is nothing beyond Guruji's powers. He is full of kindness, love, and ever willing to shower blessing upon all those who come in his Sharan. We now exist and enjoy life within the security umbrella of Guruji, our Lord and Master of the universe. How it all started for us. My daughter Shubha had been suffering from asthma and eczema since the age of 2. She had been enduring the maladies for nearly 15 years when one of my friends asked me to seek Guruji's blessing in early 2000. She, however, did not agree to take us to Guruji. At that time, we were staying at Kalkaji.
One day in the month of August 2000, while driving past Empire State Sultanpur, I remembered the reference of my friend and told my wife about Guruji. At the same time, I promised to visit Guruji once I managed to shift to Gurgaon. At that time, we were trying to dispose of a Gurgaon flat because of our inability to manage the funds to pay the installments. My father was staying at the only other residential property in Ghaziabad, so he could not be expected to fund the Gurgaon flats purchase. Unexpectedly, within about 15 days of my promise to visit Guruji, my father asked my elder brother to purchase the Ghaziabad house from me. This allowed father to stay on in that house, and I got the requisite funds by September 2000 to settle outstanding dues against the Gurgaon flat. Our shifting to Gurgaon was now cleared of all obstacles. On 16 September 2000, there was a sudden aggravation in the skin condition of my daughter, and it lasted for about 4 months. As a result, she missed her 11th half yearly exams. Homeopathic treatment continued as before. Her condition gradually improved, and by January 2001, her skin was nearly clear except for some marks. On 26 January 2001, we shifted to our Gurgaon flat. Somehow, I was sure, even at that time, that Guruji had a role in my shift to Gurgaon and the remarkable improvement in Shubha's skin condition. So I promptly decided to seek Guruji's blessing at Empire State. I randomly selected the date of 17th February 2001. It turned out to be a Mahashivratri, and on advice from people at Empire State, I landed at the Bade Mandir in the Bhati Mines area. I had Guruji's darshan. I had the feeling that this was the Guru I had been searching for all my life. Due to her sickness, Shubha had failed in her class 11th exams and was asked to repeat the year despite being a brilliant student. I decided to move her to another school to avoid her any embarrassment. I had the feeling that this was the Guru I had been searching for all my life. Due to her sickness, Shubha had failed in her class 11th exam and was asked to repeat the year despite being a brilliant student. Just a minute. I decided to move her to another school to avoid her any embarrassment. At the same time, I prayed to Guruji to help us. She was admitted to class 11th in Gurgaon with a switch from the science to the commerce stream. Most unexpectedly, the principal agreed to re-examine her and promised to promote her to class 12th in case she scored above 80%. She was given 2 months during the summer break for preparing for the new subjects. We prayed to Guruji and Shubha prepared for the test. With Guruji's blessing, she managed to score the required marks and was put in class 12th. The principal was under no obligation to do this. We did not know her and she asked for no favors in return. This was Guruji's way of showing us that he is with us all the times and takes care of our problems even if we never mention them to him. In November 2001, Guruji went to Punjab. I continued my weekly visit to Empire State regardless. Around March 2002, I saw Guruji in my dream telling me to come to Empire State only on 14th April 2002. I shared this with my wife and did not visit Empire State in between. On 14th April, I went to Empire State and was pleasantly surprised to find Guruji there. I came to know that Guruji had returned from Punjab on the evening of 13th April, and this was the first Sangat being held at Empire State after his return. Other devotees from the Sangat later told me that Guruji's dream is real. My faith in Guruji strengthened even further, and we started looking forward to seeing him in our dreams. I had been trying to change my job since August 2003 without success. I was selected in the interview, but for one reason or another, the change in job never happened. Neither did my company settle for an alternative. Finally, I mustered courage and spoke to Guruji in September 2005 about his interview and sought his blessings. His first response was, "तू पैसे दा की करेगा?"
तू मेरे को लाजा. What will you do with money? You come to me. A devotee, Mr. Singla, told him that I have 2 daughters to marry off, and he smiled and said, जा ते फिर पैसा कमा ले. Go and then you can earn money. I did not take me more than 1 week thereafter to get a call from MNC, which promptly offered me the new position without being told. Guruji was aware of the new job and the salary that I was drawing. Father cured of multiple health problems. My father was 79 years old. Towards July 2005, he was diagnosed with prostate cancer. He underwent surgery and started receiving medical treatment. While this was going on, he suffered a heart attack and underwent an angioplasty soon thereafter. These twins' problem created an emergency that was getting out of control, as despite all medication, his prostate condition relapsed after 3 months. At this time, I requested him to seek Guruji's blessing. Till then, he did not believe in Guruji and never came for darshan. He agreed and came to Guruji at Empire State towards end 2005. We never mentioned his problem to Guruji in person. Thereafter, he continued to recite Om Namah Shivaya in front of Guruji's photograph at home. Slowly, all his medication was withdrawn and all his test results related to the prostate and the heart came normal. His health improved beyond expectation. He even made sure that he attended all major functions at Bade Mandir. Satsang of Commander Retired R.K. Sharma. The next satsang. Guruji's grace in the school of life. My first visit to Guruji Sangat was on my 21st birthday. My father, Commander R.K. Sharma, had been going for Guruji's darshan for quite some time, but my mother, my 2 younger sisters, and I had never accompanied him till then. On my 21st birthday, I don't know why, but I felt like taking his blessings. I had always been an average student after scoring just about 64% in my school 12th boards. I could not get admission to any of the good DO college in the science stream. My father enrolled me into the BCA program of Indira Gandhi National Open University. Little did I know that the first attempt pass out percentage of IGNOU for its BCA MCA degree was only 3%. That is, there in 100 students pass in their first attempt. With Guruji's blessing, in spite of being an average student, I cleared not only my BCA degree but also my MCA degree on the first attempt. If this was not enough, I even managed to clear a 2-year NEET course with an excellent score along with my graduation and was able to manage 1.5 years of work experience as a software developer along with my post-graduation. Who would have thought that a girl like me could cope with so much of pressure and hard work? But I managed it, and it all happened with Guruji's blessings. Soon the whole family started going to Guruji Sangat for his darshan religiously. After completing my MCA, I desperately needed a new job. So once my exams got over, we all visited Guruji for his darshan. My mother prayed to Guruji for a good job for me with a starting salary of rupees 10,000. I don't know why she prayed for rupees 10,000. That is the exact figure that I got as a stipend when I got a job. When I asked her, she said that is what came to her mind at the point of time and she prayed for it. In December 2002, my exams were over and on January 5, I joined my new job. When I was called for an interview by the same company, the manager realized that I did not fit the job criteria. They were wondering how they could have given me an interview call when my qualifications were different. But they decided to interview me in any case of another vacancy that suited me. I finally landed the job when I turned 23. My parents decided that it was time for me to get married. My parents started checking matrimonial ads. There was one Faridabad based family my parents were keen on and they decided to visit them over a weekend. We had received another biodata of a boy living in Faridabad, but as the biodata was not very descriptive, my parents decided to give it a miss. Just as they were leaving to meet the first boy's family, the second boy's father called up. My parents still could not make up their mind, but since we had received a call from them and my parents were going to Faridabad, they decided to drop in and at the second boy's house
now my husband too. It all worked out fine in the end of with the end fine in the end with Guruji's blessings. In 2004, Guruji gave me an early morning dream, darshan, and said after 2 years we would go abroad. At that point, I really don't know what to. I didn't want to go to abroad, and I never thought I would be happy about it ever. 2 years later, when the time came, the scenario was different from what it was when Guruji had told me that I would be going abroad. Surprisingly, I am actually happy about the development. In fact, our shift to Germany was planned for September 2006, exactly 2 years after I had Guruji's dream. There are many more experiences apart from the ones shared above. When I was being interviewed over the phone for a job in Germany, which didn't go too well, I got Guruji's reassuring fragrance for a few seconds. I immediately got the message there is nothing to worry about. Guruji is watching over me and all my loved ones. Satsang by Jaya Sharma. The third satsang from the same family, so I'm reading it. Becoming a follower of the source of peace. I came in contact with Guruji after my marriage to Jaya, and I got the opportunity to have his darshan on his birthday in 2003. My wife's family was devoted to Guruji. I went with them to seek his blessings on his birthday. After that, we came home, but he held some attraction for me, and I went to his sangat after some time. I found that the sangat to be source of peace. Even before Guruji came and sat in front of us, there was feeling of peace in my heart. Everybody was sitting silently, mostly with folded hands, some with closed eyes, and some even following the bhajans, which were going on in the background. In spite of about 100 people in that place, everything looked perfectly balanced. When Guruji came, we all stood in respect and then sat down in front of him. Everything became the same as it was before. I was trying to look at him, but there was a certain energy coming out of him such that I could not look continuously at him. I gave up and went back to sitting with my eyes closed. It was very relaxing and peaceful. Sometimes he spoke to the Sangat and even joked with them. Since then, I have become a follower of that source of peace. Almost a year went by, and I had two things in mind: to get a good and more paying job, and to find good match for my sister. During those days, once I had a dream in which I, along with my in-laws, was sitting in an ashram with Guruji, and he gave me a Shivlinga. I discussed this dream with Jaya, and she said that Guruji has blessed us. With Guruji's kripa, after some time, I got a wonderful job. I went to him after getting the offer letter for my new job and also told him about my concerns as regards finding a good match for my sister. After hearing me, he said, "Mauj kar, be carefree." These words were enough for me to understand that everything will fall in place and Guruji is taking care of everything in the meantime. I also became the father of a son. After some time, we also found a nice match for my sister, sorry, who is now happily married. Now with Guruji's blessing, I am happy and enjoying my life with my family. I got a job offer from Germany. This again is Guruji's wish, which he made clear to my wife Jaya in her dream 2 years ago, when we had never thought of going out of the country. सत्संग भाई राजेश अंकल। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, कैसे आप यू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखिए कैसे गुरुजी, ये 3 फैमिलीज़ का एक्चुअली सत्संग था, 3 चैप्टर्स इसलिए मैंने पढ़े कि अंकल का, फिर उनकी डॉटर का, फिर उनके सन इन लॉ का। और इसमें इन्होंने बहुत ही प्यारी बात बोली है, लाइक मैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गई हूँ कि बिकमिंग अ फॉलोअर ऑफ सोर्स ऑफ पीस। अब सोचो, मतलब मैं ये लाइन पढ़ के ना पता नहीं कितनी बार मैंने पढ़ी होगी और कितनी बार मैंने सोचा कि लाइक मतलब सच अ वाव लाइन कि बिकमिंग अ फॉलोअर ऑफ द सोर्स ऑफ पीस, कि हम किसके फॉलोअर बन रहे हैं। हमें ज़िंदगी में देखिए क्या चाहिए होता है, हम कहते हैं कि हम कितना धन दौलत हमें कोई हमसे ले ले, कुछ भी कर ले, बट हमें वो कहते हैं मन की शांति, हमें पीस चाहिए बेसिकली। तो
वो सोचिए, वो जो पीस है वो हमारे गुरुजी हैं, वो उनके फॉलोअर हैं, हम लोग उनके फॉलोअर हैं, जहाँ पे सिर्फ हमें पीस के अलावा कुछ नहीं मिलता। और अब देखिए हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो रही हो, हमारा कितना भी कुछ हो रहा हो, बट अगर गुरु हमें लगता है कि गुरुजी आप हमारे साथ हो ना, तो सब कुछ हमारा अच्छा होगा। कैसे देखिए उनको गुरुजी ड्रीम दिखाते हैं, कैसे उनकी बेटी की उन्होंने स्किन प्रॉब्लम ठीक की, कैसे उनको जब वो फर्स्ट उनका थॉट था कि लाइक गुरुजी अगर मुझे मतलब गाजियाबाद शायद बहुत दूर पड़ता है, लाइक अगर मुझे गुड़गांव, सॉरी कालका जी बहुत दूर पड़ेगा, तो अगर मुझे गुड़गांव के अंदर घर मिल जाता है तो मैं आपके विजिट के लिए आया करूंगा। तो सोचिए कि आप उन्होंने मन में सोचा, और ये देखिए किस तरह से उनका गुड़गांव का घर उनको अंकल को मिल जाता है। और वो कैसे गुरुजी, क्योंकि जब जोड़ते हैं ना गुरुजी अपने से, तो वो फिर वो भक्त की बात भी सुनते हैं कि अच्छा तुमने ये बोला है कि अगर तुम यहाँ रह के मेरे पास आ सकते हो तो ठीक है, तुम्हारा यहाँ इंतजाम करा देता हूँ। और देखिए कैसे उनको ये चीज़ मिलती भी है कि उनको गुड़गांव में उनका घर मिल जाता है। फिर उनकी वीकली जैसे भी वो जाते थे, दे यूज्ड टू गो। फिर उनके बच्चे, उनकी वाइफ है, वो नहीं मानते थे, बट समहाउ दे आल्सो स्टार्टेड गोइंग ओवर देयर। कैसे वो बेटी को ड्रीम आता है, कैसे वो एग्जाम के अंदर गड़बड़ होता है तो उसके बावजूद भी गुरुजी उसको पास करा देते हैं, और किस तरह से वो होता है। देखिए यहाँ पे ना गुरुजी सब जाने जाने हैं, उनको सब पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से सब उन पे छोड़ देना चाहिए। और जैसे उनके सन इन लॉ ने भी कहा कि देखिए कहाँ तो किसी और लड़के को देखने जा रहे थे, बट उनका वो सन इन लॉ कोई और होता है कि अचानक कॉल हो जाती है, क्योंकि सब गुरुजी को पता था। और वो भी उनके फिर फॉलोअर बन जाते हैं, और उनको कितना अच्छा लगता है वहाँ मतलब जाके गुरुजी के यहाँ पे। और जो एक बात इन्होंने इसमें बोली है कि लेकिन उनके गुरुजी के ड्रीम, तो बेसिकली गुरुजी के ड्रीम हमेशा रियल होते हैं। ये मैंने पुरानी संगत से भी बहुत सुना है, और इनफैक्ट मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का कि गुरुजी ने जब भी मुझे ड्रीम में आके कुछ बोला है, जब भी कुछ कहा है, वो हमेशा सच है। वो लोग दिखा देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। तो हमें उनको ड्रीम को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि लाइक मतलब अगर वो गुरुजी साक्षात खुद अगर दिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ कह रहे हैं। कभी भी देखो, बचपन से भी मैं देख रही हूँ, कभी भगवान के जब दर्शन होते हैं, बचपन से भी मैं सुनती आई थी कि भगवान के दर्शन आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब अगर वो चाहेंगे तभी वो आपके उसमें ड्रीम में आते हैं, ऐसे भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। तो वो तो रब है, वो तो वो आए हैं, तो उसका मतलब वो कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो सोचिए कैसे उनको वो ड्रीम आया कि 2 साल के बाद शी हैज़ टू गो टू अब्रॉड, और वो 2 साल के बाद अब्रॉड, एग्जैक्टली 2 साल के बाद वो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप हर चीज़ उन पे छोड़िए, गुरु जी पे। हमारा हमारा अपना कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ उन्होंने अंकल ने शुरू में बोली कि गुरु जी फुल ऑफ काइंडनेस, उनके उस अम्ब्रेला के अंदर जो उनका वो काइंडनेस है, और वो कहते हैं ना अपनी ब्लेसिंग्स इतनी बरसा रहे हैं, लेकिन ना उनके कहते हैं ना हिंदी में वो उसको बोलते हैं छत्र छाया। तो बेसिकली वो जो छत्र छाया है ना उनकी, और वो तो इतनी कहते हैं ना इनफाइनाइट है कि आप उसमें कितने लोग आ जाओ, मतलब वो तो उनका तो खैर वो ही नहीं है। हम लोग ऐसा हो जाते हैं कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं गुरुजी, हम नहीं आ पा रहे हैं आपकी, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ है कुछ करके। लेकिन आप एक कदम तो बढ़ाओ। वो देखिए आपको तो बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास आओ। और वो तो कहते हैं ना कि जैसे गुरुजी जब, क्योंकि देखिए संगत जोड़ने के लिए गुरुजी क्यों कहते थे कि संगत लेकर आओ। तो शुरू में मुझे भी थोड़ा अटपटा लगता था कि ऐसे कैसे गुरुजी कहते संगत लेकर आओ, और ऐसे कैसे मतलब लाइक। तो लेकिन सोचिए कि गुरुजी ये चाहते थे कि जितने लोगों के ब्लेसिंग्स मिल जाए, जितने लोगों का भला हो सकता है उतना भला हो। ये तो गुरुजी को थोड़ी कोई जरूरत पड़ी है किसी चीज की, अपने महिमा कुछ करवाने की, या उनको अपने वर्णन। अगर ऐसा कुछ होता तो वो उसी टाइम वो सोशल मीडिया पे इतना आ सकते थे, सब कुछ था, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ मना किया था। बट आज की शायद ये हमारी नीड है, शायद इसीलिए गुरुजी उन सत्संग को जो बुलाए और उनको जोड़ा। या जैसे मुझे भी कहा कि अपनी सहेलियों को, अपने पेशेंट को लेकर आना, मैं डायरेक्ट ब्लेस करूंगा। तो वो गुरुजी ने जो काम दिया, मेरे को शायद लगता है कि यही तरीका है। क्योंकि आजकल इस पेंडेमिक टाइम में खैर हम लोग, एक यही तरीका रह गया था कि हम इस तरह से जुड़े लोगों के साथ, कि देखिए हमें कनेक्ट कराना है। और उस टाइम भी गुरुजी कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ रखो। और मैं आपको एक बात की बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जब गुरुजी ने मुझे बोला था कि अपनी सहेली ने लेकर आई, तो जब मैं अपनी फ्रेंड को लेकर गई गुरुजी के पास, तो उसने कहा था कि मेरा ना इंट्रोडक्शन करवा देना। तो जब मैं गुरुजी से बस आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी ये मेरी मतलब, अभी मैंने बोला भी नहीं है गुरुजी को ये बात, और मेरी फ्रेंड माथा टेकने लगी है, और मैं बस जैसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना किसी का, इससे पहले मैं कुछ बोलूँ अभी, तो गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं चल जाए यहाँ से, बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। तो एकदम से मुझे लगा, मैंने कहा जैसे ना गुरुजी ने मुझे एकदम से कर दिया। अब गुरुजी को ये बात कैसे पता कि जो फ्रेंड मैं लेकर आई हूँ वो डॉक्टर नहीं है, और उसको कह रहे हैं कि चल तू जा, मतलब मेरे को बोल रहे तू जा, बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील है, नहीं डॉक्टर नहीं मेरी फ्रेंड है, तो मैं उसकी वकालत करने के लिए क्यों खड़ी हूँ यहाँ पे। तो सोचिए कि गुरुजी को पता था कि ये मतलब
वकील बनकर आई है उसकी कि लाइक मतलब इसके बारे में बताएगी। तो यहाँ कहने का मतलब संगत जी बहुत क्लियर मैसेज था उस टाइम भी गुरु जी का, जो कि उस टाइम हम लोग नहीं समझते थे कि अब तुमने मुझे इसके पास ला दिया। मतलब जो मैंने अपनी फ्रेंड को या मैं किसी संगत को मैं लेकर जा रही हूँ, जब तुम गुरु जी के चरणों में उसको लेकर आ गए हो तो वो गुरु जी का और उनका कनेक्शन है। अब मैं और वो कोई नहीं है कनेक्शन के लिए कि इंट्रोडक्शन की जरूरत है या कुछ है। अब मैं गुरुजी के पास लाई और ये बड़ा क्लियर मैसेज गुरुजी ने उस टाइम दिया, और देखो बहुत बड़ा मैसेज था लेकिन हम उस टाइम समझ नहीं पाते कि ये बड़ी आई डॉक्टर ने की वकील। और अब इससे से ये भी विश्वास हुआ कि गुरुजी को तो मैंने बताया नहीं कि मेरी फ्रेंड डॉक्टर नहीं है। और अब देखिए कैसे मतलब गुरुजी को पता, क्योंकि उस टाइम हम लोग नहीं समझते थे लेकिन गुरुजी को तो सब कुछ पता है। और मुझे भी याद है कि जब वो लोग फैमिली जब आए थे तो उनके हस्बैंड ने ये सुना और मतलब देखा जब उनको। और इनफैक्ट ये बहुत बहुत लोगों से मैं सुनती भी थी और मैंने खुद भी रियलाइज की थी कि जब गुरु जी के पास जब फर्स्ट टाइम गए तो ऐसा लगा था जैसे चारों तरफ वो लाइट जली हुई है। तो होता है ना, हम जब जैसे जब फोटोग्राफ खिंचवा रहे तो बहुत सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं फोटोग्राफर्स हमारे ऊपर ताकि वो अच्छी आए, हमारी पिक्स अच्छी आए। तो इस तरह का ना कुछ था कि वहां पे लगा था, बट देवर नॉट लाइट्स एक्चुअली। वो जो गुरु जी का इतना प्रकाश निकलता था अपने आप से, इतना सच में जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया जगमग जगमग सा रहता था। मतलब गुरुजी का सच में इतना प्यारा स्वरूप होता, मतलब स्वरूप कह रही हूँ सॉरी, गुरुजी का जो रूप होता था उस वक्त, स्वरूप तो हम बोलते हैं। मतलब गुरुजी मतलब मेरे को तो अभी से मतलब जब गुरुजी के बारे में बोलती हूँ तो मुझे कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है एकदम से कि वो जब गुरुजी को जब हम देखते थे ना, मतलब मैं कहती थी वाह। मतलब वाह वाला वर्ड भी है ना, बहुत मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज को। गुरुजी का वो जो रूप हम देखते थे, गुरुजी को जो देखते थे, और गुरुजी का वो मुस्कुराना, गुरुजी की वो आंखें ऊपर ऐसे करके बोलना, या गुरुजी को मतलब हमें इस तरह से ना, मतलब इधर बात कर रहे हैं और उधर से ऐसे ऐसे आंखों से ऐसे कर रहे हैं और इशारों से, मतलब इसको भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो सोचिए इतना हमें लगता था कि लाइक मतलब गुरुजी कैसे मतलब, और हर किसी को लगता था गुरुजी इसको देख रहे हैं। कि मुझे लगता था गुरुजी देखो सारा टाइम ना मुझे ही देखते रहे, जैसे गुरुजी की तरफ देखो लगता था गुरुजी मुझे देख रहे हैं। बट अब सीखो मैं पुरानी संगत से जब सत्संग सुन रही हूँ उस टाइम के लोगों से, तो अब लगता है कि सब कहते थे, पता है उस टाइम हमें लगा कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, बट सोचिए कि सबको ही लगता था। तो और कई बार ना मुझे याद है कि जब गुरुजी अपने बैठे होते थे एम्पायर स्टेट पे तो ना अपने रूम में उठ के जाया करते थे कई बार गुरुजी। तो जब रूम में जब उठ के जाया करते थे तो हम लोग सब खड़े हो जाया करते थे। तो कई बार मेरा बहुत मन होता था कि फिर उसके बाद हमारा कई बार, हमेशा नहीं होता था, कई बार होता था बस ऐसे। तो जब गुरुजी रूम में चले गए ना तो गुरुजी का रूम खुला होता था और गुरुजी के पास में भी शायद कुछ खाने की चीज़ या पीने की चीज़ कुछ ले जाते थे। तो मैं क्या करती थी चुपके से ऐसे गुरुजी के रूम में देखना कि गुरुजी कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं। तो बहुत मन करता था गुरुजी को देखो कि क्या कर रहे हैं गुरुजी अपने रूम में, मतलब सामने तो रूम दिख ही रहा होता था। तो मैं ऐसे गुरुजी को देख रही थी तो गुरुजी ना बिल्कुल ऐसे टेढ़ी नजरों से ऐसे मेरे को देख रहे होते थे, और मैं फटाफट नीचे नजरें करके ना मैं कि गुरुजी ने मुझे देख लिया और अभी बोलेंगे, मतलब मैं गुरुजी को देखती रहती हूँ। फिर मैं देखती थी कि गुरुजी ने फिर देखा, फिर आंख बचा के फिर मैं गुरुजी को देखती थी, फिर देखती थी गुरुजी ऐसे टेढ़ी नजर से मेरे को देख रहे होते थे। फिर मैं कर लेती थी, मैंने कहा वो अभी गुरुजी आएंगे और कहेंगे कि मतलब मेरे को खाने दे आराम से समथिंग लाइक दैट। मेरे को लगता था मन में कि मतलब मुझे बस देखे जाएगी। फिर भी ना लेकिन बहुत मन करता था, बस गुरुजी से नजरें नहीं हटती थी। तो और बस मैं छुप छुप के ना ऐसे देखती रहती थी और हमेशा गुरुजी मुझे देख रहे होते थे। लेकिन सोचिए बाद में जब ये बात हुई है हम लोग जैसे डिस्कस करते थे, या डिस्कस किया सॉरी, सत्संग जब हम शेयर करने शुरू किए, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया कि पता है एक दिन ऐसा हुआ था, मैं गुरुजी के पास ऐसे बैठी हुई थी और ऐसे मैं देख रही थी। तो उन्होंने कहा अरे हाँ ऐसा हुआ था ना गुरुजी, पता मुझे देख रहे थे। मैं कहा नहीं नहीं मुझे देख रहे थे। तो सोचिए कि हाथ में पता चला कि जब उस वक्त गुरुजी कभी ऐसे देखते थे तो गुरुजी सबको देख रहे होते थे। कह रही इमेजिन कि मतलब खैर वो तो अब तो हमें पता है कि वो रब है, वो तो उस टाइम हमें कुछ है जो कुछ जो 100 200 250 संगत को किया वो तो पूरे संसार को देख रहे हैं। हम लोग क्या मतलब हैं ऐसे कि लाइक हम लोग तो हमें सिर्फ लगता है कि ये गुरुजी मतलब वो है, लोग सोचो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हमारे अपने हैं। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि सच में हमारे वो छत्र छाया के अंदर वो उनकी जो काइंडनेस थी, उनका जो कहते हैं ना उनकी जो ब्लेसिंग्स, मतलब गुरुजी इतना बरसाते थे सच में उस वक्त। रियली वी कुड फील दैट थिंग कि वो जो ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है ना, जैसे अब इस टाइम सपोज बरसात होगी तो आपको फील होगा ना, पानी गिर रहा है आपके ऊपर, वो कर रहा है। उस टाइम संगत जी सच में बिलीव मी कि वो ना ब्लेसिंग्स की बरसात लगती थी, हम लोगों को फील होता था कि गुरुजी इतने प्यार से हमें देख रहे हैं, हमें निहार रहे हैं, हमें मतलब और बहुत गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे, लोगों की बहुत मन करता था गुरुजी इससे बात कर रहे हैं। और हम जब लाइन में जाते थे
तो ऐसा कभी नहीं लगता था कि लाइक अरे इतनी लंबी लाइन है, क्या है। लगता था कि नहीं, ये लाइन चाहे बेशक और लंबी हो जाए, लेकिन क्योंकि खड़े होने का मौका तो मिल रहा है ना हमें, गुरुजी को देखने का मौका तो मिल रहा है ना। तो ये फील आती थी हमें। और जब धीरे धीरे सुनते थे कि गुरुजी उनके साथ क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कभी गुरुजी बड़े जोर के एकदम हंस पड़ते थे। और अभी एक वीडियो देख रही थी मैं, मतलब वही हंसी मुझे, मतलब तो गुरुजी जिस तरह से उसमें हंस रहे हैं बड़ी जोर का, बड़ा अच्छे से। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा सोचो गुरुजी ये आपने मुझे दिखाया हुआ है, लाइक मैं इस चीज़ की साक्षी हूँ वहाँ पे, मतलब कि मैंने वो सब चीज़ देखी हुई है आपकी, सब चीज़ आपको हंसते हुए, आपको बोलते हुए, आपको लोग नमस्ते करते हुए, आपको मतलब कितनी प्यारी प्यारी, मतलब सच्चा, मतलब गोल्डन मोमेंट्स भी कम है, मतलब पता नहीं वो मोमेंट्स कहते हैं ना, इनका तो कोई मोल ही नहीं है, मतलब प्राइसलेस प्राइसलेस मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। बट बहुत शुक्राना गुरुजी, तो अपनी इस ना चीज़ को इतना मतलब समझा कि आपने अपने दर्शन करने दिए और इतना मौका दिया कि मुझे आपकी जो ग्रंथ, जिसको लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी की मतलब माना जाता है। देखिए मैं ना, अभी मुझे अचानक से आया कि मैं इसी गुरुजी से कहती थी, गुरुजी अभी एक संगत है शिल्पी आंटी, उनका कुछ आया था, तो मैंने उन्हें कुछ बोला, उनको मैंने बोला टाइट हक फॉर यू। और वो मुझे कहती हैं कि आंटी आपको पता है मैं यही सोच रही थी कि लाइक मैं गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी प्लीज गिव मैं टाइट हक। तो मैंने कहा हाँ, फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे वो गुरुजी को ऐसे पकड़ के कर भी रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं आपका स्वरूप छोटा वाला कहाँ है, और मैं लाइक मैं भी टाइट हक करूंगी। और मैं भूल गई इस बात को। देखिए जस्ट इमेजिन, बात करते करते जब से मैंने ऐसे केयर, कैसे गुरुजी सुनते हैं कि लाइक ही इज गिविंग मी अ टाइट हग विच आई रियली नीड। लव यू गुरुजी। तो गुरुजी हमारा हर पल सुनते हैं, ये छोटी सी बात है, मतलब मैंने ऐसे रियलाइज नहीं किया कि लाइक ऐसा मेरे से हो जाएगा, या मतलब सच में गुरुजी आप हर पल सुनते हो। और हमारे गुरुजी हर पल, हर अंग है हमारे। आप उनकी शरण में रहिए, आप उनका अपने गुणगान करते रहिए। सॉरी संगत जी, जस्ट मिनट। तो अब गुरुजी देखिए, और दूसरों जैसे गुरुजी के वहां पर है ना, जैसे गुरुजी, जैसे अंकल ने पता और बोली इस वक्त के, जब उससे पहले बड़ा वो होता था कि सब बड़े प्यार से बैठे हैं, कोई भजन सुन रहा है, कोई आंखें क्लोज करके बैठा है, कोई अपने ध्यान मगन है, जैसे भी जब लोग बैठे हैं। और जैसे गुरुजी आते थे, मतलब बहुत इतना परफेक्ट डिसिप्लिन होता था वहाँ, इतना परफेक्ट डिसिप्लिन होता था गुरुजी के यहाँ पे, पिन ड्रॉप साइलेंस। और जैसे ही जब गुरुजी आते थे और जब गुरुजी निकल के जाते थे, मतलब तो डेफिनेटली वो तो सीन ही कुछ और होता था। वो मैंने बहुत कम एक्चुअली वो किया है, बट जो संगत ने बताया है वो मतलब मेरे से कम हुआ है, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो जाते थे जाते जाते। तो लेकिन उसके बाद जब गुरुजी बैठते थे, वापस आते थे, कई बार अपने रूम से मैंने कहा चले जाते थे, फिर वापस आते थे, तो सब कुछ एकदम वैसे ही परफेक्टली बैलेंस, जैसे इसमें लिखा ना परफेक्टली बैलेंस्ड। कहीं कोई इधर से उधर नहीं बैठ रहा, कहीं कोई इधर से कुछ नहीं, मतलब लाइन टेढ़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से सब बैठे हैं, जैसे सेवादार कह रहे हैं वैसे बैठे हैं, और एकदम परफेक्टली कुछ भी वहां पे जैसे लगता है ना, बैलेंस्ड। तो संगत जी मेरा यही कहना है कि प्लीज आपने लाइफ भी ऐसी, जैसे गुरुजी ने बैलेंस सिखाया हमें, लाइफ में डिसिप्लिन सिखाया है, तो प्लीज आप अपने अपने आप को भी उस तरह से बैलेंस करके चलिए, बैलेंस करके अपनी लाइफ को बना के रखिए। हमें लगता है कि हम लोग ना, वो सीसा होता है ना कि हम उस पर वो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जो सीसा है ना, बैलेंस जो है हमारा, वो बना के रखेंगे ना, हमें इधर और उधर नहीं जाने देंगे। क्योंकि जब ये है हमारी लाइफ में, कहते हैं ना कि वो जब सीसा के अंदर वो जो बीच वाला हिस्सा होता है वो हमें बैलेंस बना के रखता है, तो दिस इज आवर बैलेंस ऑफ आवर लाइफ। तो सोचिए कि इस अगर ये हमारी लाइफ में है, और हम इनसे तो हम क्यों डर रहे हैं उस चीज के लिए। वो अपने आप संभालेंगे, वो अपने आप बैलेंस कर देंगे। बस आपका, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, ही वॉन्ट्स ओनली योर फेथ। वो आपका सिर्फ फेथ चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं, और गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए। वो उस टाइम भी देखिए हमसे क्या चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं। आप देखिए, मैं आज मैं बड़े मंदिर होकर आई, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो बहुत अंदर से वो हो रहा था कि गुरुजी, मतलब मैंने अंदर गई मैं, और बहुत मन में था कि मैं गुरुजी आज तो कुछ ला नहीं पाई, क्योंकि हस्बैंड की मीटिंग आ गई थी, वो जा नहीं पाए, तो अपनी डॉटर के साथ गई मैं। तो बड़ा वो भी लग रहा था कि गुरुजी हम साथ में आ रहे, तो चलो, लेकिन कोई नहीं, बस गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे एक लाइन मुझे याद आ रही थी कि परिवार को कोई भी आ जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। खैर उन्होंने प्रसाद गुरुजी ने भेजा वहाँ से, सबके लिए मैं लेकर आई। तो मैंने मंदिर में जाके ना, ऐसे मेरे बहुत मन में आया कि मैं प्लीज़ मतलब नेक्स्ट टाइम प्रसाद ले आऊँ यहाँ पर, कुछ मिठाई या कुछ भी करके ना। उन्होंने उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। थैंक यू हिमांटी। दीपमाला नमस्ते।
तो मैं देखिए मैंने उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आंटी प्लीज़, एक तो इस पेंडेमिक का भी चक्कर है और दूसरा देखिए मंदिर में हम अलाउ नहीं करते। तो ये मुझे याद आया कि जब मैं एम्पायर स्टेट में हम लोग जाया करते थे, तो मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मेरा बहुत मन किया कि मैं कुछ लेके जाऊँ। जैसे होता है ना भगवान के यहाँ कुछ लेके जाते हैं, फ्लावर्स ले जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाएँ या कुछ है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कविता आंटी, थैंक यू चांदनी आंटी, थैंक यू सोनल जी। तो मैंने कहा अंकल मेरे को ना बहुत मन है कि हम मिठाई ले आऊँ, मेरे बेटे का बर्थडे है। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी यहाँ पे ऐसे अलाउ नहीं है, और आज भी वही सेम बड़े मंदिर में भी कहा कि नहीं। तो देखिए गुरु जी हमसे कुछ नहीं चाहते, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमारा ये चाहिए, थैंक यू रुचि जी। तो ये सिर्फ उनको हमारा प्यार चाहिए कि हम वहाँ पे जाएं, प्यार से बैठे। वो हम क्या देंगे, वैसे तो कह रहा हूँ मैं क्या दे सकती हूँ वहाँ पे। हम लोग सिर्फ देखो, उन्होंने तो बल्कि मैं क्या मिठाई लेके जाऊँगी, उन्होंने मुझे वो दिया, मतलब प्रसाद दिया। तो अच्छा इसमें ना प्रसाद से मुझे एक छोटा सा याद आया कि मेरे ना डॉटर को बीच में एक ड्रीम आया था, जिसमें इसको मैं इलेबोरेट फिर बाद में करूँगी, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। थैंक यू किरण आंटी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू अलका जी, थैंक यू शिवानी जी, जय गुरु जी शिवानी जी। तो ना उसमें ड्रीम आया कि लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनिया जी। तो उसमें ड्रीम आता है कि उसको बहुत एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, मेरी बेटी को पेट में दर्द होता है, बहुत कुछ हो रहा था। और वो जब सो के उठती है तो उसको लगता है कि नहीं वो फिर मतलब ठीक से मतलब उसका बिल्कुल लाइट मूवमेंट और बहुत अच्छा नहीं लगता उसको जब सोकर उठती है। तो उसने कहा कि मम्मी मेरे को ना प्लीज़ दिखाओ डॉक्टर्स को, और मेरे को क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सब मेरे फ्रेंड्स तो इतना कहते हैं ना इतना मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं और मैं नहीं रह पाती। तो अब हमने सब कुछ दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर्स ने कहा नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपकी डॉक्टर को। तो उसके बाद ये गुरु इसने ना गुरुजी से प्रे किया। खैर आने में गुरुजी ड्रीम में आए, जैसे मैंने कहा था गुरुजी देखिए रियल होते हैं ड्रीम गुरुजी के, और ऐसे नहीं होते जैसे इसमें चैप्टर्स में भी ये बताया गया कि ड्रीम्स रियल हैं। तो मेरी डॉटर को ड्रीम आता है कि वो हम लोग बड़े मंदिर गए हैं और गुरुजी ने वहाँ पर उनको मोतीचूर का लड्डू दिया है मेरी डॉटर को। नहीं वो पहले सॉरी वो गुरुजी से कहती है कि गुरुजी मेरे ना इतना पेट में दर्द हो रहा है, इतनी मेरे को प्रॉब्लम होती है और इतना है। थैंक यू एवरीवन, मैं सबको बाद में ज़रूर जवाब दूंगी और मैं सत्संग पूरा कर देती हूँ। तो ना मेरी डॉटर को गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मेरी डॉटर एक्चुअली गुरुजी से बोल रही है कि गुरुजी मेरे पेट में दर्द होता है, मेरे को देखो वो जो प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे बता रही थी वो सब गुरुजी को बताती है वो। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी ना अपने हाथों से मोतीचूर का लड्डू देते हैं उसको ड्रीम के अंदर। तो उसके बाद ना जब सुबह उठी तो उसने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया था, नॉर्मली उसको बहुत ज़्यादा ड्रीम नहीं आते हैं। तो जब उसने ड्रीम बताया कि मोतीचूर के लड्डू दिए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, लाइक ऐसा करेंगे जब हम मंदिर जाएंगे तो मोतीचूर के लड्डू ले जाएंगे। बट समहाउ हम लोग लेके नहीं गए, और हम लोगों ने क्या फिर घर पे प्रसाद मतलब वो लगा दिया, क्योंकि वो था कि भाई पेंडेमिक टाइम में मंदिर में जाना नहीं देंगे, इसलिए बेसिकली हमारा ये था। तो वो बाहर से बाहर ही आई थिंक वो आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली क्या हुआ था, सॉरी गुरुजी। तो वो मोतीचूर के लड्डू जो थे बेसिकली वो जो गुरुजी का हमने भोग लगाया, तो वो मैंने अपनी डॉटर को दिया। और संगत जी बिलीव मी कि नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठी है और जब उसने वो प्रसाद खाया सुबह उठते के साथ ही, जो उसका वो पेट दर्द था, जो उसकी वो प्रॉब्लम्स थी जिससे वो इतने महीनों से परेशान होती, वो सारी गायब हो गई। तो अभी क्या हुआ कि उसको अभी थोड़े दिन पहले, अभी हफ्ता पहले एक बार फिर से उसको पेट दर्द उठा, इट वॉज वेरी वेरी सिवियर। इतना सीवियर था, उसको सारी मैंने दवाइयाँ दे दी, डॉक्टर से मेरी बात हो गई, डॉक्टर्स ने कहा ये दवाई दे दो वो दवाई दे दो। तो इसके एकदम दिमाग में आया, मेरे भी इस टाइम माइंड में नहीं आया था। मेरी डॉक्टर कहती है मम्मी मोतीचूर के लड्डू मंगवाओ आप। तो सोचिए वो दर्द में तड़प रही थी कि मैं मोतीचूर के लड्डू मंगवाओ आप। तो मैंने फटाफट मोतीचूर के लड्डू मंगवाए और प्लस कोई मेडिसिन डॉक्टर ने जो बोली थी मैंने फटाफट वो मंगवाई। तो इससे पहले वो मेडिसिन दूँ मैं, तो मैंने मोतीचूर का लड्डू गुरुजी को भोग लगा के और अपनी डॉक्टर को दे दिया। तो जब मोतीचूर का लड्डू दिया तो मैंने कहा ठीक है वैसे कोई मेडिसिन खा लो, कहती मम्मी 2 मिनट वेट करो मैं देखती हूँ। और संगत जी बिलीव मी कि मुझे वो मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मोतीचूर के लड्डू से ही उसका पेट दर्द ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि परसों की बात है कि हमारे वो जो मोतीचूर के लड्डू मंगाए थे वो खत्म हो गए, तो कल का दिन हमारा ऐसे निकल गया। तो ना मेरे मन में ऐसे था, मैंने कहा मैं ना मोतीचूर का लड्डू तो हमेशा घर में रखूंगी, ताकि कम से कम उसको कोई भी तकलीफ हो तो मैं इसको दे सकती हूँ। तो बस समाओ, और ऐसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी मतलब है तो आज, लेकिन मुझे था कि मैं लेके जाऊंगी, लेकिन समाओ वो होता ना हस्बैंड की एकदम मीटिंग आ गई बहुत अर्जेंट मिनिस्ट्री के अंदर, तो जो भी था मैं नहीं ले जा पाई। तो सोचिए बट गुरुजी हमारे कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे, कितना ध्यान रखते हैं संगत जी कि ठीक है। मैं वहाँ से मैंने पूछा मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊँ क्या, और सोचिए जब मैं लेके जाऊंगी तब लोग, हालांकि मंदिर में मना कर दिया कि आप आंटी कुछ मत लेकर आना, बस कुछ नहीं, गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स लेके जाओ बल्कि यहाँ से। तो सोचिए संगत जी आपको सबको पता हुआ, अगर आज आपने प्रसाद देखा हो उसमें समोसा और एक मोतीचूर का लड्डू है,
तो आई डोंट नो कि हमेशा रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, आई डोंट नो, मतलब लेकिन सोचिए कि मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में मोतीचूर का लड्डू नहीं है और मुझे अपनी डॉटर को देना है। और सोचिए कि कैसे मोतीचूर का लड्डू गुरुजी मेरे को दे देते हैं कि इसके मन में इतना था मोतीचूर का लड्डू करने का, लाइक तू मेरे से ले। तो कैसे वो सुनते हैं। और मेरी ना मदर इन लॉ, शी इज़ हॉस्पिटलाइज राइट नाउ, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। मैंने पहले भी शेयर किया था कि कैसे गुरुजी का लंगर से वो ठीक हुई। तो आज सुबह से क्या हुआ कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है उनकी, और वो मतलब कुछ भी नहीं, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो बस मैं वो प्रसाद लेके गई हूँ उनके पास हॉस्पिटल में, और मैंने कहा मम्मी ये गुरुजी का प्रसाद है। और देखिए उसके लिए उन्होंने एक बार मना नहीं किया, और वो थोड़ा सा मोतीचूर का लड्डू हमने उनके मुंह में डाला है। उसके बाद ये था कि कुछ तो वो खाएं एक्चुअली, फिर वो आधी रसमलाई उन्होंने खाई है। उसके बाद वो चाय पी है उन्होंने। तो सोचिए संगत जी कैसे वहाँ पे एक थी, एक वहाँ पर अटेंडेंट कहती है मैं पहले भी देखा था कि बाकी वो जानती नहीं गुरुजी कौन है क्या है, बट कहती है मैं तो मिरेकल देख के दंग रह गई हूँ कि कैसे दिस इज पॉसिबल कि इतनी कोई बुरी कंडीशन में है, जरा सा प्रसाद मुंह में जाता है और मतलब वो एकदम उठ के बैठ जाती हैं। तो आई विश गुरुजी वो जल्दी ठीक हों और मतलब सब अच्छा रहे। तो संगत जी प्लीज़ आप गुरुजी के लंगर प्रसाद में उनके जो भोग प्रसाद मिलता है, जो भी मिलता है, प्लीज़ देखिए एक छोटी सी चीज़ ने जैसे छोटी सी गोली काम करती है ना, वैसे देखिए। तो वो गोली के हमें कितने सारा हमें उस टाइप से प्रसाद मिलता है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि मंदिर में आप खाइए, और नहीं है तो एटलीस्ट जो भी मिला है एटलीस्ट प्रसाद ज़रूर अपने ख़त्म करना है। ये मेरा मतलब है कि तो प्रसाद पूरा खाइए। तो सोचिए उसमें ही कितनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की उसमें। और हम जब एक बार वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें कुछ दे रहे हैं, जैसे गुरुजी ने आज हमें वो चीज़ दी है, मतलब कुछ भी दे रहे हैं, हमें वो प्रसाद दे रहे हैं या हमें कुछ भी दे रहे हैं, जब वो आपको सेवा दे रहे हैं, प्लीज़ उसका अपने कहते हैं ना बहुत मन से निभाइए हर चीज़ को। प्रसाद को अच्छे से खाइए, सेवा देते तो उसको मन से निभाइए। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, और मेरे मतलब उसमें सब कुछ छोड़ दीजिए। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ होती है कि हमें ना बहुत ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, बट संगत जी ऐसा नहीं है। वो हर पल सुनते हैं, हर पल आपको जवाब देते हैं, हर पल। मतलब अगर मैं ऐसे सत्संग सुनाने बैठूँ ना, देयर आर सो मैनी, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो मेरी गुरुजी से जुड़ी हुई बातें हैं, जो गुरुजी के साथ मैंने पल बिताए हैं, वो मैं कहीं छोटा-छोटा आप लोगों को बताती रहूँ। और जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी में गुरुजी ने वो चीज़ ये चीज़ बताई है कि जो पल उन लोगों ने गुरुजी के साथ बिताए। तो ऐसे ही अ, हालाँकि मेरे को ना आज एक संगत और मैं भी आई थिंक कहीं शेयर कर रहे थे कि भई हमारा जो सत्संग है, वो लाइट ऑफ डिविनिटी में नहीं है एक्चुअली। तो लेकिन उस टाइम फिर मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा कैसे? उस टाइम तो हम लोग आते थे, आप लिखवा रहे थे, तो मेरा क्यों नहीं लिखवाया आपने? कि जो भी काफ़ी संगत का नहीं लिखा उसमें, उस टाइम हम लोग जाते थे। तो लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आप समझ रहे हो कि जो ये चीज़ मेरे को लाइफ़ मिली है, या जो भी जितनी चीज़ें हुई हैं, ये सब बाद में हुई हैं। तो उस टाइम ऐसा कुछ था ही नहीं। बट हाँ, एक बार रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो नहीं आ पाया, दैट्स ओके। बट हम लोग, लेकिन मैं तो कहती हूँ गुरुजी, मतलब फिर भी इतना बड़ा शुक्राना कि आपने कम से कम हमें दर्शन तो दिए। और आज की जो संगत है, वैसे संगत जी बता दूंगी, देखिए नया और पुरानी संगत कुछ नहीं होती है। ये सिर्फ एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता गया कि हम लोगों ने दर्शन किए तो हम लोग पुराने हो गए, और जो जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो नए हो गए। तो सिर्फ यही डिफ्रेंशिएशन है। बट कभी भी ये मत समझिएगा कि कभी अगर हमारे मुंह से हम, मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मैं कभी किसी को न्यू संगत बोल देती हूँ। वो सिर्फ मेरा एक भाव, हमारा किसी का भी भाव आई थिंक यही होता है कि जिन्होंने दर्शन किए हैं और जिन्होंने दर्शन नहीं किए। बाकी तो हम कितने जन्मों से कब किससे जुड़े हैं, और ये मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने हमें भी बताया कि हम लोग कब से जुड़े हैं गुरुजी। आई थिंक इसमें लिखा हुआ है आगे ट्राइंग टू फिनिश। तो आई थिंक शायद यही आज आज्ञा है गुरुजी की कि मुझे भी हॉस्पिटल भी जाना है, मदर इन लॉ को देखना है। और थोड़ा बहुत गुरुजी जैसे कह रहे थे सेलिब्रेट जरूर करो, तो थोड़ा बहुत हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। और इसी के साथ ही बहुत शुक्राना संगत जी आप सबका सुनने का। और मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलने में, क्योंकि डेफिनेटली एक ह्यूमन एरर तो सबके साथ रहता ही है हम लोगों के साथ। तो कोई गलती हो गई हो बोलने में, ग्रंथ पढ़ने में, तो गुरुजी बहुत भूल चूक मेरी माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि हम कहते हैं ना इंसान गलतियों को पुतला है। छोटी मोटी गलतियाँ तो छोटी मोटी क्या हो ही जाती हैं गलतियाँ। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे आज मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं एक गुरु जी के टाइम का एक छोटा सा सॉन्ग लगाती हूँ, जो गुरुजी ना बहुत ये बहुत एक्चुअली एम्पायर स्टेट में मतलब जब ये पहले तो देखिए हम जब जाते थे ना तो शबद बाणी चलती थी वहाँ पर। तो जब शबद बाणी चलती थी उसके बाद जब जैसे ही लंगर स्टार्ट होता था, तो एकदम से ना वो चेंज हो जाता था, गाने चेंज हो जाते थे एकदम से। तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा अभी तो शबद बाणी चल रही है, जैसे ही लंगर शुरू होता है तो ये गाने क्यों चेंज हो जाते हैं। मतलब जब एक भक्ति वाला वहाँ पे माहौल है, तो वो वहीं पे वही रहे ना वहाँ पे। तो और गाने भी ना ऐसे होते थे एकदम डिफरेंट, कोई पंजाबी आ गए, पुराने पंजाबी सॉन्ग आ गए,
या कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वो आ गए, और मुझे बहुत अजीब लगता था शुरू शुरू में। अब तो बाद में तो खैर हमें पता चल गया ये गुरुजी ने ये सब क्यों कहते थे, क्योंकि देखिए गुरुजी ना हमेशा ये बात ये भी बोलते थे, जो मैंने पुरानी संगत से सुना है, लेकिन जो मैंने रियलाइज किया मैं वो बता रही हूँ आपको, कि ठीक है पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया, अब आप इंजॉय भी करो। और किसी एक संगत का मैंने सुना भी था कि सारा दिन 24/7 भगवान का इसमें इसमें इसी में नहीं बिताना होता, हंसी मजाक भी करो तो पूर्व, लेकिन हाँ उस परमात्मा को याद हमेशा रखो कि वो आपके साथ है, वो मतलब हर चीज में से कहते हैं ना कि वो हर हर पल में गुरु जी को याद रखो। किसी एक आंटी का मैं सुन रही थी कि किसी को आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप गुरु जी को याद रखो, तो बस वही चीज है कि आप गुरु जी को हमेशा वैसे ही याद रखो, बट इंजॉय भी करो। तो मैं एक गुरु जी के टाइम का एक लगाती हूँ, जो कि लगता तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि गुरु जी ये ऐसे कैसे सॉन्ग लगते हैं यहाँ पे। एक सेकंड दी। तो वही, लेकिन देखो गुरुजी ने आपको पता ही बहुत हमेशा ऐश भी बहुत कराते थे, और गुरुजी बहुत डांस करवाते थे, बहुत इंजॉय कराते थे, तो बड़ा अच्छा भी लगता था वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स पर। ये सॉन्ग मैंने बहुत ज़्यादा मैंने सुना हुआ है, तो आज अभी मैं प्ले करती हूँ। ये देखिए। तो संगत जी इसी के साथ ही आपका सबका शुक्राना, और गुरु जी का इनफाइनाइट शुक्राना। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।